Good evening, friends. Welcome back to my channel AAA Easy Trading and Investing with Manthapa. Today we are going to discuss about company name BLS International Services Limited. BLS International Services Limited is a leading global provider of outsourced visa, passport, consular, and digital public services. The company operates in over 100 countries and has become a key partner for governments in processing travel and citizen services. In FY26 ended March 2026, BLS delivered a record performance. Revenue jumped 36.7% to 2,998 crore and net profit rose 34.1% to 724 crore. EBITDA stood at 819 crore with healthy margins. The business is highly scalable with low capital intensity, strong cash generation, and multiple growth levers from rising global travel and digitization of government services. At current valuations around 237 to 268 levels market cap 10,000 to 11,000 CR, BLS offers an attractive entry for long-term investors. Let's break it down step by step. Business model. BLS operates two main segments: visa and consular services, larger contributor, and digital services. In the visa segment, it runs application centers, handles document verification, and provides end to end support for governments worldwide. In FY26, this segment generated 1,840 crore, up 11.3%, processing 44.1 lakh applications. Margins improved sharply to 40.1% due to self managed centers and higher value services. The digital services segment, boosted by acquisitions like Adifidelis, more than doubled to 1,158 crore, offering Aadhaar, e-governance, and other citizen services. The model is asset light, cash generative, and benefits from long-term government contracts. Recent wins in China, Slovakia, Cyprus, and UIDAI projects strengthen visibility. Overall, BLS is well diversified across geographies and services with strong operating leverage. Sector view. The global visa and consular outsourcing market is growing rapidly due to rising international travel, tourism recovery, and governments outsourcing non-core functions for efficiency. India's outbound travel and skill migration are also increasing. The digital public services segment is expanding fast with e-governance initiatives. Tailwinds include post-pandemic travel boom, new international contracts, and government focus on digitization. Competition exists from VFS, Global, and others, but BLS has built strong relationships and execution capabilities. The sector offers high growth with stable, recurring revenue from multi year contracts. Future growth. BLS has delivered exceptional growth. 20 to 25% annual guidance for the next 5 years looks achievable. Key drivers include higher visa volumes, new geographies, premium services, and digital expansion. FY26 already showed strong momentum with digital revenue doubling and visa margins expanding. Management is focusing on self managed centers for better control and profitability. With a healthy cash balance of 1,434 crore and strong cash flow, the company is well funded for organic and inorganic growth. Analysts see continued 20% plus revenue CAGR potential as travel normalizes and governments outsource more. This positions BLS as a scalable compounder in a high growth sector. Risk and challenges. Key risks include geopolitical tensions affecting travel volumes, for example, Middle East issues, regulatory changes or contract losses, such as the recent UAE replacement, and margin pressure from new center setups. Currency fluctuations and competition also matter. However, BLS has mitigated these through geographic diversification, long term contracts, and focus on high margin digital services. Asset quality and cash generation remain strong. Conclusion. BLS International is a high quality growth story available at reasonable valuations, PE around 1516x. The company has proven execution, strong order momentum, and clear 20-25% growth runway. While short term volatility from global events can occur, the long term outlook is bright. Final verdict: buy at current levels for long term investors. This is a solid compounder for the next 5 to 10 years. Accumulate on dips for excellent risk reward. Like, share, and subscribe for more deep analysis. Comment below what you think about BLS International. Let's discuss the fundamental analysis and technical analysis.
गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रिपल इजी ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग विद मंथापा। सो जैसे अभी हमने जो है वेरी रिसेंटली वी हैव डिस्कस अबाउट द ऑल कंपनी फंडामेंटल एनालिसिस, व्हाट दे डू, हाउ दे आर गेटिंग द अर्निंग एंड ऑल, व्हाट इज द मेजर बिजनेस. नाउ वी आर जस्ट मूविंग टुवर्ड अ वन स्क्रीनर रन ऑफ द फाइनेंशियल्स एंड देयर फंडामेंटल्स. तो मार्केट कैपिटलाइजेशन जो ये जो कंपनी है दैट इज 9,705 करोड़. करंट प्राइस जो है 236 रुपए का चल रहा है, लेकिन अगर आप इसका जो है इंट्रिंसिक प्राइस जो देखोगे वो 451 है. तो इंट्रिंसिक वैल्यू जो है उससे काफी नीचे ये अभी ट्रेड कर रहा है. इसका जो पीई जो है वो 14 का है. इंडस्ट्री की पीई जो है वो 34 का है. तो ऑलमोस्ट जो है वो 60% अपने इंडस्ट्री पी से नीचे ट्रेड कर रहा है. फ्री कैश फ्लो 766 करोड़ का है. सीएफओ बाय पैट जो है एक्स्ट्रा ऑनरी 139% है, विच इज एक्सट्रीमली गुड. और कंपनी का जो है अगर हम ऑल टाइम हाई से देखें तो हम करीबन जो है वो 55% हमें डाउन देखने को मिल रहा है. पैट्रिस्टिक स्कोर काफी बेहतरीन है. साथ का अर्निंग यील्ड काफी अच्छा है 9.16 का. तो अगर आप कंपनी को देखो तो प्राइस टू बुक वैल्यू भी एक बार देख लेते हो. 3.94 है, इंडस्ट्री का 3.09 है. तो इंडस्ट्री की प्राइस टू बुक वैल्यू से हल्का सा जो है हमें एक्सपेंसिव देखने को मिल रहा है. लेकिन अगर आप ओवरऑल कंपनी देखें, 10,000 करोड़ की कंपनी आपको जो है वो मिल रही है. एंटरप्राइज वैल्यू जिसकी मात्र 8,974 करोड़ है. डेट टू इक्विटी रेशियो बिल्कुल नॉमिनल है 0.17 के आसपास में. और जो है आपके पास में 766 करोड़ जो है इसके पास में फ्री कैश फ्लो पड़ा हुआ है. 55% डाउन जो है ऑल टाइम हाई से मिल रहा. तो मेरे हिसाब से जो है ये नो ब्रेनर शेयर है. और इस टाइम पे जो है ये काफी वैल्यू बाइंग लेवल पे यहाँ पे ट्रेड कर रहा है. अगर हम इसके 3 साल या 10 साल के भी अगर हम प्राइस के मूवमेंट को अगर हम देखें तो ये जो है काफी पहले 65 में मूव करता था. उसके बाद में बढ़ते बढ़ते जो है ये 250 के आसपास में आया. इसके पास में जो है इसने 10 जनवरी के आसपास में या दिसंबर जनवरी के आसपास में जो है इसने जो है ऑल टाइम हाई अपना 500 के आसपास में टच करा. और अभी जो है हमें ये 237 के आसपास में हमें यहाँ पे देखने को ये मिल रहा है. ठीक है. इसके बाद में अगर आप ये देखोगे तो ये जो लेवल था यहाँ पे आप ये देखो वॉल्यूम कितना बेहतरीन है. इस लेवल पे वॉल्यूम कितना बेहतरीन है. तो अभी जो है एक इसका जो है जो पूरी लाइफ में जो वॉल्यूम नहीं आया था वो वॉल्यूम हमें यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं. पी रेशियो लाइकवाइज अगर आप जो है 10 साल, 5 साल, 3 साल, 1 साल अगर आप पी देखो तो बिल्कुल लोएस्ट लेवल पे ये ट्रेड कर रहा है, जो कि हमें ये वैल्यू बाय बनाता है. लाइकवाइज जो है अगर हम इसको जो है प्राइस टू बुक से अगर हम कंपेयर करें तो चाहे वो 10 साल हो, 5 साल हो, 3 साल हो या फिर 1 साल हो, तो प्राइस टू बुक में भी अगर आप देखो तो बिल्कुल लोएस्ट लेवल पे जो है ये ट्रेड कर रहा है. अपने मीडियन से जो है ये काफी डाउन है. लाइकवाइज अगर जो हम इसको मार्केट कैप बाय सेल्स से अगर भी हम देखें तो 5 साल में जो है 10 साल में जो है मीडियन से नीचे है. 5 साल में मीडियन से जो है वो काफी नीचे है और वन ऑफ द लोएस्ट लेवल में है. 3 साल में मीडियन से काफी डाउन है और वन ऑफ द लोएस्ट लेवल में है. 1 साल में भी अगर आप देखो तो वन ऑफ द लोएस्ट लेवल में है. तो किसी भी रेशियो से आप इसको कंपेयर कर लो, पीई, पीबी, मार्केट कैप, बाय सेल्स, हर किसी रेशियोज में जो है ये बिल्कुल आपको जो है डॉट चीप प्राइस पे मिल रहा है और मीडियन से काफी नीचे बाय करने का ये आपको मौका दे रहा है. ऐसा मौका दोस्तों इस तरीके के स्टॉक में जो फंडामेंटली काफी स्ट्रांग है बहुत कम चांसेस मिलते हैं. ये ऐसी कंपनी है जो लास्ट 5 सालों से जो है 68.8% सीएजीआर से ग्रोथ कर रहा है. कंपनी का जो रिटर्न ऑन इक्विटी जो है वो लास्ट 3 साल का अगर हम देखें तो वो 32.9 का है, विच इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी. कंपनी जो है टैक्स जो है वो काफी कम है. इसमें छोटा सा कंसर्न जो है रेड फ्लैग ये है कि प्रोमोटर की होल्डिंग जो है वो थोड़ी सी घटी है -4.02% से अगर हम लास्ट 3 साल का अगर हम डेटा देखें तो. ठीक है. इसके अलावा जो है हम अगर इसके पीयर्स से अगर हम कंपैरिजन करें तो ये इसके डायरेक्ट पीयर्स नहीं है. अगर मैं आईआरसीटीसी, टीवीओ टेक या लीड रेवन्यूज कर से अगर मैं कंपेयर करूं बीएलएस इंटरनेशनल को तो ये इसके डायरेक्ट कॉम्पिटिटर नहीं है. फिर भी अगर एक मोटा मोटा अगर हम इसको कंपैरिजन अगर मैं करना चाहूँ तो इसमें जो है वन ऑफ द हाईएस्ट अर्निंग यील्ड है 9.16 का. यहीं पर ही जो है थॉमस कुक का अर्निंग यील्ड जो है 10 के आसपास में जो है इसके रिलेटिवली पास में देखने को मिल रहा है. आरओसीई जो है वो बेस्ट इन द इंडस्ट्री है. आईआरसीटीसी का 49 है. वाटर वेयर्स का 91 है. लेकिन इसका जो है 31.33 इज अगेन बेस्ट इन द इंडस्ट्री आई वुड से. सेल्स जो है लास्ट 3 सालों से जो है वो 25.5% से ग्रोथ करा और मैनेजमेंट की गाइडेंस है कि आने वाले अगले 5 सालों में जो है 20+% से ये ग्रो करेगा. तो काफी बेहतरीन ग्रोथ ट्रेजेक्टरी में है ये. वहीं पर ही टीवी और टेक लीड रेवन्यूज का जो है इसका जो सेल्स जो है
वो थोड़ा सा ज्यादा एग्रेसिवली ग्रो कर रहा है 35 एंड 34 के हिसाब से। करंट मार्केट प्राइस बाय बुक वैल्यू से अगर हम देखें तो वन ऑफ द लोएस्ट है 3.97 का। अगर हम इसके कोई भी कॉम्पिटिटर से अगर हम इसको कंपेयर कर रहे हैं, थॉमस कुक का जो है 1.90 है, वो इससे भी थोड़ा सा कम है। रिटर्न ऑन एसेट्स हाईएस्ट जितना होगा वो अच्छा माना जाएगा, तो 23.87 बेस्ट रिटर्न ऑन एसेट जो है ये बना के दे रहा है बीएलएस इंटरनेशनल, विच इज एक्सट्रीमली गुड। वहीं पर ही आरओई रिटर्न ऑन इक्विटी जो है 32.88 का बेस्ट इन द इंडस्ट्री है आफ्टर आईआरसीटीसी। तो आईआरसीटीसी का ग्रोथ पैटर्न जो है वो 13 के आसपास में है, इसका ग्रोथ पैटर्न जो है 25 के आसपास में, विच इज अगेन वेरी वेरी गुड। तो अगर हम इसको अपने कॉम्पिटिटर से कंपेयर करें तो ये काफी अच्छे वैल्यूएशन लेवल पे हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ठीक है, वहीं पर क्वार्टरली रिजल्ट आप देख सकते हो कि ये कॉन्टिन्यूसली ग्रोथ कर रहा है। क्वार्टरली रिजल्ट में जो है कभी भी जो है इसने जो है यहाँ पे डी ग्रोथ हमें देखने को नहीं मिल रहा है। तो आप ये देखो कि एक काफी बेहतरीन तरीके से जो है ग्रोथ कर रहा है। नेट प्रॉफिट जो है वो कंटिन्यूसली यहाँ पे बढ़ रहा है। अभी का जो लास्ट क्वार्टर जो है इसका 187 करोड़ का जो इसने प्रॉफिट दिखाया है, ये ऑल टाइम हाई नेट प्रॉफिट है अगर आप क्वार्टरली देखोगे। लाइक वाइज जो है अगर आप जो है ईयरली बेसिस में भी देखो तो सेल्स जो है वो ऑल टाइम हाई 2,998 करोड़ का है। और लाइक वाइज नेट प्रॉफिट जो है वो भी ऑल टाइम हाई 724 करोड़ का जो है ऑल टाइम हाई नेट प्रॉफिट इन्होंने पोस्टिंग करा हुआ है। तो आपको जो है 55% ऑल टाइम हाई से जो है यहाँ पे डाउन देखने को मिल रहा है। और यहाँ पे कंपनी के फंडामेंटल्स जो है वो काफी बेहतरीन है, और हमें जो है काफी वैल्यू बाइंग लेवल पे हमें यहाँ पे अभी देखने को मिल रहा है। कंपनी का अगर हम लास्ट का 10 सालों का अगर हम सेल्स ग्रोथ देखें तो 20% से ग्रोथ करा है। प्रॉफिट ग्रोथ जो है वो 36% से ग्रोथ करा है। लेकिन जो स्टॉक प्राइस की जो मूवमेंट है वो यहाँ पे दिखा नहीं रहा है। 5 साल का अगर हम देखें तो सेल्स ग्रोथ जो है 44% है, प्रॉफिट ग्रोथ 69% है, और स्टॉक में प्राइस में जो ग्रोथ जो है वो 49% की हुई है। यहाँ पे सबसे ज्यादा जो वैल्यूएशन गैप जो आ रहा है वो 3 साल और 12 महीने में आ रहा है। 3 साल में जो है ग्रोथ 26% की हुई है, प्रॉफिट ग्रोथ 50% की हुई है, लेकिन प्राइस जो है वो मात्र 3% से हमें अब देखने को मिल रहा है, जो कि काफी कम है। तो यहाँ पे जो है आप ये देखो कि कोई सेल्स 26% और प्रॉफिट 50% से ग्रोथ कर रहा है, लेकिन उसका जो प्राइस जो है वो मात्र 3% से ग्रो कर रहा है लास्ट 3 सालों में। तो ये बहुत ही बड़ा जो है यहाँ पे हमें वैल्यू बाइंग नजर आती है। 12 ट्रेलिंग मंथ में अगर हम 12 महीने का भी देखें तो 37% से सेल्स ग्रोथ करा है, 36% से प्रॉफिट ग्रोथ करा है, लेकिन जो प्राइस की जो मूवमेंट है वो -38% हुई है। रिटर्न ऑन इक्विटी जो है वो बेस्ट इन द इंडस्ट्री है। अगर हम इसका एवरेज लें तो 10 साल, 5 साल, 3 साल का तो 30%, 31, 33 एंड लास्ट ईयर में 33% रहा है। तो काफी बेहतरीन रिटर्न ऑन इक्विटी जो है ये हमेशा दे रहा है। इसका सबसे बड़ा जो फॉल का जो है, ये जितनी भी जियो पॉलिटिकल टेंशन हो रही है वर्ल्ड में, जिसके हिसाब से जो है ऐसा लग रहा है कि शायद ट्रेवलिंग कम हो जाएगी या वीजा की रिक्वायरमेंट कम पड़ेगी, तो उसकी वजह से जो है आने वाले फ्यूचर को डिस्काउंटिंग करते हुए चल रहा है। बट कभी भी इसमें जो है इतना डिफरेंस, इतना जो है 50% का जो सेल्स या रेवेन्यू में जो है डेफिनेटली इसका इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। मैनेजमेंट की कमेंट्री कह रही है कि अगले 5 साल में हम 20% प्लस CAGR से जो हम ग्रोथ करेंगे, विच इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। बैलेंस शीट अगर आप देखें तो रिजर्व जो है वो कंटिन्यूसली बढ़ रही है। 1690 करोड़ से जो है 2422 करोड़ का जो है अभी रिजर्व ये दे रहे हैं। फिक्स एसेट्स कंटिन्यूसली बढ़ रहे हैं। अभी जो 1721 करोड़ का जो फिक्स एसेट्स है, यहाँ पे कहीं पे भी जो है इनके बैलेंस शीट में कैश फ्लो में जो है कोई भी दिक्कत नहीं दिख रही है। कैश फ्लो में आप देख सकते हो कि CFO बाय ऑपरेटिंग प्रॉफिट अगर आप देखोगे तो लास्ट आप 3 साल का या 5 साल का भी अगर आप देखो तो अब 100% है, विच इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। रेशियोज जो है वो काफी सारे अच्छे हैं। डेटर डेज जो है वो 20 से 21 दिन का रहता है। कैश कन्वर्सेशन साइकिल जो है 20-21 दिनों का है, थोड़ा सा बड़ा है, बट इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है। वर्किंग कैपिटल डेज जो है वो -42 डेज का जो था वो 2 डेज में आ गया, विच इज अगेन फाइन। 2 डेज इज नॉट अ वेरी ह्यूज बिग डील। ROC जो है वो लास्ट ईयर 34% था, वो गिर के जो 29% हुआ है। लेकिन अगर आप पीछे देखें तो ये 11-22% के आसपास में भी गया था। अभी भी जो है ये हेल्दी ROC इन्होंने जो है यहाँ पे मेंटेन कर रखा हुआ है। ठीक है, वहीं पर ही जो है शेयर होल्डिंग पैटर्न्स अगर हम देखेंगे तो सबसे बड़ा जो कंसर्न हमने रेड फ्लैग इसमें देखा था कि जो प्रमोटर जो है वो जून 2023 में जो 71.63 की जो होल्डिंग करते थे, अभी जो है वो घट के 70.39% की होल्डिंग हो गई है। तो ये जो होल्डिंग जो है ये यहाँ पे डेफिनेटली जो है 1-1.5% की हमें यहाँ पे कम देखने को मिल रही है। वहीं पे ही FII की होल्डिंग में भी जो है वो रिडक्शन हुआ है, जो कि 8.46% की जो होल्डिंग करते थे, जिन्होंने दिसंबर 2024 में होल्डिंग बढ़ा के 10.93 की कर ली थी, अभी जो है वो होल्डिंग
घटा के जो है 6.14, वन ऑफ द लोएस्ट होल्डिंग जो है एफआईआई की अभी इस टाइम में है। वहीं पर ही डीआईआई की होल्डिंग जो है ये कंटिन्यूसली यहाँ पे बढ़ा रहे हैं। 0.05% की जो है डीआईआई की होल्डिंग जो होती थी वो अब बढ़ के जो है वो 2.99, तो हाईएस्ट लेवल पे जो है डीआईए ने यहाँ पे होल्डिंग करी है। लेकिन एफआईआई की होल्डिंग जो है वो काफी ज्यादा एग्रेसिवली घटी है, और उस हिसाब से जो है डीआईए की होल्डिंग बहुत ज्यादा एग्रेसिवली नहीं बढ़ी है। बट स्टिल जो है काफी अच्छा है, काफी इन्वेस्टर का यहाँ पे कॉन्फिडेंस है। एलआईसी ने जो है यहाँ पे जो है 2.23% की जो है इन्होंने होल्डिंग करी हुई है, और एक काफी अच्छे लेवल पे है। अगर आप देखो तो इन्होंने जो है मार्च 2025 से 1.06% की होल्डिंग से बढ़ा के जो है जून 2025 में और बढ़ाई है। तो वहां से उन्होंने कांस्टेंट रखा, लेकिन इनका जो प्राइसिंग जो है अभी जो है प्राइस काफी टूट गया, तो इनको भी यहाँ पे लॉस हो रहा होगा। बट ये जो है बने हुए हैं यहाँ पे, और आने वाले टाइम में जो है डेफिनेटली ये स्टॉक जो है आने वाले 4 से 5 साल में जो है ये अच्छा रिटर्न देने का डेफिनेटली ये रखता है। तो यहाँ पे जो है पब्लिक की जो होल्डिंग जो थी वो 19-20% के आसपास में ऑलमोस्ट रहती थी, कुछ 17-18% के आसपास में गई थी, अभी बढ़ के जो है 20% के आसपास में आ गई है। तो बहुत ही ज्यादा घबराने वाली बात नहीं है। 20-22% की होल्डिंग जो है पब्लिक की जो है बहुत ज्यादा नहीं है। अदर की होल्डिंग भी जो है वो बहुत ज्यादा इसमें नहीं है। नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स जो है वो जो 2,08,000 10,000 के आसपास में जो लास्ट ईयर में जो देखने को मिल रहे थे वो 2,18,000 के आसपास में हुआ। तो ये भी एक थोड़ा सा जो है नेगेटिव पॉइंट यहाँ पे काउंट करा जाएगा। आपको जो है दोस्तों एनुअल रिपोर्ट, क्रेडिट रेटिंग एंड कॉन कॉल को जो है डेफिनेटली गो थ्रू करना है। ये जो है आपके कन्विक्शन को जो है बिल्डअप करने में डेफिनेटली हेल्प करेगी। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड द टेक्निकल एनालिसिस। तो ये जो दोस्तों जो है चार्ट जो आपके सामने जो दिख रहा है, ये जो चार्ट जो है ये मैंने चार्ट रखा है आपके सामने, वीकली चार्ट है। और इस वीकली चार्ट में जो है अगर मैं आपको दिखाऊं दोस्तों, तो लास्ट टाइम इसने यहाँ पे जो टॉप जो है 2022 में बनाया था, दिसंबर 2022 में। अभी अगर मैं दिसंबर 2022 में अगर मैं एक बार देख लूं कि 2022 का डेटा जो है दिसंबर का हमारे पास में नहीं है, मार्च से देख लेते हैं। मार्च में जो है 2023 में जो बिजनेस जो था जहां पे ऑल टाइम उसने बनाया था वहां पे 1,500 करोड़ का बिजनेस करता था। अभी जो है ऑलमोस्ट डबल है, 3,000 करोड़ के आसपास में। जो नेट प्रॉफिट जो है वो 204 करोड़ का जो करता था 2023 में, वो जो है करीबन करीबन जो है 3 से 3.5x बढ़ चुका है, और 724 करोड़ का जो है नेट प्रॉफिट इन्होंने यहाँ पे करा हुआ है। लेकिन इसकी जो मूवमेंट जो है इसी लेवल पे जो है, यहीं पर ही जो है इसी लेवल पे हमें आज भी जो है यहाँ पे देखने को मिल रहा है। दूसरी बात दोस्तों ये है कि देखो ये जो डाउन चैनल जो है इसने बनाया था, इसने डाउन चैनल पे यहाँ पे ब्रेकआउट नहीं दिया है, बट यहाँ पे जो है काफी नैरो लेवल पे आ चुका है। यहाँ से जो है किसी भी टाइम में जो है ये ब्रेकआउट यहाँ पे दे सकता है। लोअर लेवल पे ब्रेकआउट देने के चांसेस जो है वो काफी कम है, बट देखो स्टॉक मार्केट में कुछ भी हो सकता है, दे भी सकता है। लेकिन जो है आने वाले 1 से 2 साल में जो है ये जो है स्टॉक जो है ऑलमोस्ट यहाँ से डबल हो सकता है। 250 के आसपास का जो वैल्यू है वो करीबन ऑलमोस्ट जो है 500 के आसपास में आराम से पहुंच सकता है। डबल होने का जो है 2 से 3 साल में डेफिनेटली हो सकता है। इसके अलावा जो है एक सबसे बड़ा आप ये देखिए, हिस्ट्री में कभी भी जो है इस तरीके की वॉल्यूम जो कि अभी काफी रिसेंटली हुई हैं अक्टूबर 2025 में, और अभी जो है मार्च 2026 में, इस तरीके की वॉल्यूम जो है ये कभी भी जो है यहाँ पे इस तरीके के वॉल्यूम कभी भी नहीं हुए हैं। तो इसका मतलब ये है कि इस तरीके के देखो दोस्तों वॉल्यूम तभी होते हैं जब एक बड़ा एफआईआई, डीआईआई या इंस्टीट्यूशनल जो है जब इसमें बाय करेगा, तो तभी जो है आपको इस तरीके की लेवल की जो है यहाँ पे देखने को मिलता है। तो ये जो है काफी बेहतरीन स्टॉक लग रहा है दोस्तों। ये किसी भी तरीके से रिकमेंडेशन नहीं है, लेकिन आप ये देखिए कि किसको स्टॉक को किस तरीके से एनालाइज करना है, किस तरीके से स्टॉक को जो है डीप डाइव करना है, और इसी तरीके से जो है हमको जो है एक लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन में इस जर्नी में जो है साथ में चलना है। मैंने इस स्टॉक में जो है वन ऑफ द हाईएस्ट होल्डिंग है मेरी इस स्टॉक में। अभी जो है मैं लॉस में हूँ, क्योंकि मैंने थोड़ा सा पहले लिया था, तो 18-20% के आसपास में जो है आई एम इन लॉस। बट मेरे को जो है इसमें पूरा कन्विक्शन है। 4 से 5 साल की मेरी जो है वो इसमें होल्डिंग रहती है कंपनीज में, मैं लॉन्ग टर्म होल्ड करके चलता हूँ। तो मेरे को कोई भी चैलेंजेस नहीं है, कोई भी ऐसा इश्यूज नहीं है कि ये जो है लॉस में है। लेकिन अगर आप जो है इस टाइम पे इसको बाय करते हो तो मेरे हिसाब से ये जो है काफी वैल्यू बाइंग है, और आने वाले टाइम में जो है आपको ये डेफिनेटली जो है बहुत ही बेनिफिशियल जो है ये आपको बना के देगा। ठीक है दोस्तों, तो आप जो है मेरी वीडियोस को शेयर, लाइक एंड कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। आपके कोई कमेंट्स हैं, आपके कोई फीडबैक है, तो डेफिनेटली जो है आप मेरे कमेंट सेक्शन में आप उसको डालिएगा, मैं उसको रिव्यू करूंगा। इसी तरीके से जो है हम साथ में मिलके जो है हमें लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन की तरफ चलना है। मैं जो है वो सेबी रजिस्टर्ड जो है एडवाइजर नहीं हूँ, तो कोई भी आपको इन्वेस्टमेंट करनी है तो डेफिनेटली आपका जो एडवाइजर है आप उससे जो है वो कंसल्ट करके ही आप उसको इन्वेस्ट करिएगा। ठीक है दोस्तों,
लेट्स सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट वीक, प्रोबेबली नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक जो है एक अच्छे स्टॉक के बारे में फिर से जो है हम डीप डाइव करते हुए जो है आपसे फिर से मुलाकात करेंगे। आई एम साइनिंग ऑफ, टेक केयर, दिस इज मंथापा, बाय बाय।